हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है पार्ट 2 जिसका आया है। उसका चैप्टर नंबर 4 हम करने वाले हैं, टर्निंग टाइड्स 11th एंड 12th सेंचुरी। तो ये हम आज पढ़ने वाले कि इसमें क्या क्या अभी तक हुआ। तो हमने ऑलरेडी 6 से 9 सेंचुरी तक देख लिया था। इट इज सेम इंडिया विच वॉज विदस्टूड द शोक्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ हंड्रेड ऑफ foreign invasions and of hundred of upheavals of manners and custom। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि ये वही इंडिया है जिसको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आई, बहुत सारे इन्वेजन हुए, लेकिन ये फिर भी खड़ा रहा। इट इज़ द सेम लैंड विच स्टैंड फर्मर देन एनी रॉक इन द वर्ल्ड। तो वो इंडिया जो है वो लैंड है जो फर्म होकर वहीं पर टिका रहा किसी रॉक की तरह। विद इट्स अनडाइंग वाइगर अनडिस्ट्रक्टिव लाइफ, इट्स लाइफ इज ऑफ द सेम नेचर एज द सोइल। तो इनकी लाइफ भी वैसी है जैसे कि सोइल की होती है। विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड, ना तो इसकी कोई शुरुआत है ना ही इसका कोई अंत है। इमोर्टल है ये। एज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ सच अ कंट्री, और हम जो हैं ऐसी कंट्री के पार्ट हैं जिसमें जो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद जैसे हमेशा क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पढ़ने को मिलेंगे, जिनके आंसर्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। The first question, why are the 11th and 12th century seen as a period of transition in Indian history? The 11th and 12th century are considered a transitional period in Indian history because India experienced major changes in political power and society. Deeper invasion. In contrast of the earlier Arab attempts, the Turki armies pushed far further into the northern India. एंड इवन आफ्टर लोकल रूल पुट अप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मतलब उस टाइम तक तुर्की जो है बहुत अंदर तक आ गए थे। स्टार्ट ऑफ फॉरेन रूल, द पीरियड सो द डिसीव डिफीट ऑफ चाचा मानस बाय मोहम्मद गोरी इन 1192 CE at the second battle of Tarain, which marked the beginning of foreign rule in parts of North India and laid the foundation for the Delhi Sultanate. पावर शिफ्ट यहाँ पर हो गई थी। दीज इन्वेजन चेंज हु हेल्ड पावर एंड एनकरेज द वाइडर प्रेजेंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इंटरनल फ्लरिशिंग डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट्स, मैनी रूलर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, पोएट, philosophers, saints, and scientists flourishing during this time, engaging in naval expedition, creating astonishing monuments, and producing remarkable literary and scientific work, demonstrating resilience and continuity. Question number 2. Which new powers emerged during this time period? What were the essential features of their economic, military, and administrative system? Several new kingdom and dynasties gained prominence during this time. North, East, and Central India, the Ghorid established a authority over Delhi and nearby region. The Chachamanas controlled Rajasthan and Haryana. The Parmaras ruled Malwa and the Senas held power in Bengal. The Eastern Ganga ruled southward coastal area into Kalinga and were one of the stable power. South India में क्या हो गया? The Hoysala expanded across Karnataka while the Kakatiya governed much of Telangana and Andhra Pradesh. The Cholas were powerful ruler who ruled Tamil Nadu and expanded their territory into parts of Karnataka and Andhra Pradesh. The essential feature of their economic, military, and administrative system are military. These states maintained large army with infantry, cavalry, and war elephants, which required careful organization and considerable resources. The Gori were known for their fast-moving cavalry that helped them secure quick victories. Administration, ज़्यादातर किंगडम जो है followed structure system to collect tax from cultivators and tribute from smaller regions. The Gori introduced a more centralized arrangement by giving officers temporary land assignment in return for collecting revenue and providing military services. This approach later influenced the governing style in Delhi. Economy, agriculture was a main source of income, and many rulers support irrigation work to increase productivity. Internal and overseas trade with regions such as China and Southeast Asia also continued to grow, helped by active merchant glides. Now question number 3. What high accomplishment in art, architectures, literature, science, etc. do we come across during this period? This period witnessed remarkable achievement across many fields. Science and mathematics. Scholar like Bhaskaracharya made major contribution to mathematics and astronomy, writing work on बीजगणिता यानी कि algebra, लीलावती arithmetic, and
सिद्धांत शिरोमणि यानी कि सेलेस्टियल कैलकुलेशन। आर्किटेक्चर एंड आर्ट, टेम्पल एंड फोर्ट्स displayed extraordinary craftsmanship including intricately carved stone temple in Khajuraho, forts with impressive gateway built by the Kartikes and the Hoysala temple with detailed sculptures। तो सारी चीज़ें देखने को मिली। The Jagannath and Sun temple in Odisha also began construction during this time। Literature and philosophy, writer and thinkers flourished. King Bhoj wrote extensively on governance, art, and poetry. Somsavra III compiled an encyclopedia covering many aspects of life. Sant like Ramanujacharya and Bhaswa promoted devotion, ethical living, and social reform, emphasizing equality and personal spiritual practice. Cultural influence, Indian ideas spread abroad, shaping architecture and religious practice in Southeast Asia, exemplified by Angkor Wat in Cambodia। सो अब यहाँ पर फिर से एक टाइमलाइन दी है 950। यहाँ पर क्या हुआ 1000 से 1001 मोहम्मद ऑफ गजनी जो है कैंपेन अगेंस्ट द हिंदू साइज। और इसी टाइम पर राजा जो राज हैं चोला वन वो भी मतलब उनका एम्पायर बढ़ रहा था। राजेंद्र चोला नेवल जो एक्सपेंडेंशन था साउथ ईस्ट एशिया में वो बढ़ गया था। 1014 से 44 तक राजेंद्र चोला वन जो है वो पूरे मतलब उनका राज वहाँ से यहाँ तक चला। नाउ मोहम्मद डिस्ट्रॉय एंड प्लंडर द सोमनाथ टेम्पल, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और जितना हो उसका उसको छीन लिया या उसको मतलब हर बार उसको बार बार उसमें से पैसे या लूट कर लेकर जा रहे थे। उसके बाद परमार किंग भोज यहाँ पर आए एंड देन 12th सेंचुरी में राइज ऑफ काकतीय। अब सो इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में हमने देखा वी सो द अरब रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू इन्वेड एंड डोमिनेट नॉर्थ इंडिया एंड हाउ इन द एंड दोज इंक्लूजन हैड लिटिल ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सो हमने पहले चैप्टर में लास्ट जो भी चैप्टर देखा उसमें देखा कि किस तरह से अरब जो थे अरब बार बार आते थे, अटेम्प्ट करते थे, इन्वेड करते थे और डोमिनेट करना चाहते थे नॉर्थ इंडिया के पार्ट पर। हाउएवर लास्ट में क्या हो गया, थोड़ा बहुत उनका ओवरऑल इम्पैक्ट इंडिया पर देखने को मिला। द 11th and 12th सेंचुरी टेल अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन 11th और जो 12th सेंचुरी उसमें एक अलग ही स्टोरी हमें देखने को मिलती है, इन्वेजन बाय तर्किक। अब ये तुर्की जो थे ये कौन है, तुर्की रेफर टू पीपल्स लैंग्वेज एंड कल्चर हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद अ रीजन स्ट्रेचिंग अक्रॉस सेंट्रल एशिया ऑल द वे टू तुर्की से साइबेरिया, तुर्की से साइबेरिया तक जो रीजन है उन लोगों को या उनकी लैंग्वेज को बोला जाता है, उनके कल्चर को। सो अब इन्वेजन हुआ, तुर्की ने जो किया वो पावर पेनेट्रेटेड मच डीपर इनटू द नॉर्थ इंडिया। तो इन्होंने जो है बहुत इंडिया के जो है बहुत जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर बहुत गहराई तक अपनी जो है शक्तियाँ दे दी थी, मतलब एक तरह से वहाँ पे ओवरऑल इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया था डिस्पाइट स्टबबोर्न रेजिस्टेंस फ्रॉम नेटिव किंगडम्स। यहाँ तक कि जो नेटिव किंगडम्स थे वहाँ के वो उनके लिए हमेशा रेबल करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था। वी बिगेन द चैप्टर विद एन इन्वेजन एंड एंड द चैप्टर विद अनदर। हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे एक इन्वेजन से, यानी कि दूसरे जो देश आते थे या दूसरे जो लोग आते थे वो किस तरह से आकर आक्रमण करते थे, और ख़त्म भी उसी पे करेंगे विद अ वेरी ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन दैट केम इन देयर वेक। और बीच बीच में जो थोड़ी बहुत जो उनका बारे में हम देखेंगे, जो जब वो आ रहे हैं तो रास्ते में उन्हें किस तरह के वॉर या डिस्ट्रक्शन देखने को मिले या उन्होंने किए, वो सब हम देखेंगे। However, many Indian rulers are flourished in this time period। और बहुत सारे इंडियन रूलर भी हैं जो इस टाइम पर बहुत फ्लरिश हुए, फले फूले, सक्सेसफुली बैटलिंग द इन्वेडर्स एट टाइम। और इस टाइम पर वो जो इन्वेडर्स से बहुत अच्छे से लड़ाई भी कर रहे थे। When there were no battling each other, जब बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हो रही थी, conducting naval expedition, creating अटोनशिंग मोन्यूमेंट और प्रोजेक्टिंग इंडियाज़ इन्फ्लुएंस अब्रोड। अब जब कोई भी लड़ाई नहीं थी तो नेवल को अपना एक्सपेंड कर रहे थे, मोन्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे और इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है बाहर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। बहुत सारे पोएट, फिलोसफर, संट्स एंड साइंटिस्ट बिलोंग टू दिस पीरियड एंड देयर वर्क कंटिन्यू टू इल्यूमिनेट अस इवन टुडे। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ देखने को मिली हमें कि इस टाइम पे जो दार्शनिक थे, संत हुए, वैज्ञानिक हुए, उनकी रचनाएं आज भी हम जो है पढ़ रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ओनली एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ जो है कुछ ही इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है, फिगर हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उसके आगे का दिया है 1150 में भास्कराचार्य ने क्या किया, लीलावती जो है कंपोज की थी। 12th सेंचुरी में अंकोर वाट टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था कंबोडिया में।
बैटल ऑफ तराइन हुआ, मोहम्मद गोरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर हरा दिया था। ये पहले एक और हुआ था जिसमें मतलब तीसरी बार में उन्होंने उनको हराया था। तो उससे पहले के जो युद्ध थे उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। दैन बख्तियार खिलजी ने जो है कामारूपा को हराया था। डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी एंड बख्तियार खिलजी, वो इस टाइम पे दोनों मर गए थे। नाउ थिंक अबाउट इट, अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन इन ग्रेड 8 यू विल रीड अ नोट ऑफ हिस्ट्री डार्कर पीरियड। तो एक आप जो है ग्रेड 8 में जाएंगे तो पढ़ेंगे नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर पीरियड, जो सबसे ज़्यादा जो आप खतरनाक बोल सकते हैं जिस भी तरह से। ब्रीफली इट एक्सप्लेन हाउ हिस्ट्री हैज़ रिकॉर्डेड वॉर, conquest and destruction more than peace, good governance or creativity, and how the world over historians have sometimes hesitated to draw attention to such darker period. सो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप देखेंगे वहाँ पर हिस्ट्री को तो आप देखेंगे कि किस तरह से वॉर को, लड़ाई को, जीत को और जो भी जो है चीज़ें तोड़ी फोड़ी गई, डिस्ट्रक्शन किया गया, उन चीज़ों को हिस्टोरियन ने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किससे? पीस, जो अच्छी गवर्नेंस होती थी, क्रिएटिविटी थी, इनके सामने उन चीज़ों को उन्होंने नहीं दिखाया है। आवर अप्रोच इज़ डैट इट इज़ बेटर टू फेस दैम। हमारी अप्रोच क्या है कि ये बेटर है उनको फेस करना। मतलब एक तरह से बहुत एक अटेंशन उसमें जाएगा कि कितना डार्क पीरियड था उस टाइम पे, कितनी लड़ाइयाँ होती थी, लोगों की जो है सोच समझ या वो उस टाइम पे कितने वो टेंशन में रहते होंगे। सो फेस दैम एंड एनालाइज दैम सो एज to understand what made such development possible and hopefully help avoid this recurrence in future. तो इस तरह से हम उनको फेस कर पाएंगे, देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि इतने सारे डिस्ट्रक्शन और वॉर के बाद भी किस तरह से वहाँ पर इतना डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ, और हम साथ में ये भी होपफुल रहेंगे कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। इन एडिशन वी शुड नॉट फॉरगेट डैट वाइल पास्ट इवेंट कैन नॉट बी इरेज्ड और डिनाइड। अब हमें ये भी नहीं भूलना कि पास्ट इवेंट ना तो मिटाए जा सकते, ना ही उनको हम मना कर सकते हैं। इट वुड बी रॉन्ग टू होल्ड एनी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम टूडे। लेकिन आज के टाइम पे हम पहले की चीज़ों को लेकर अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं तो वो भी गलत है। नाउ द गजनवी इन्वेजन। अब गजनवी ने जो है इन्वेजन किया, आक्रमण किया वो। इन द 9th and 10th century सेवरल किंगडम्स कन्वर्टेड ईच अदर इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड नॉर्दर्न पाकिस्तान। तो यहाँ पर बहुत सारे राजा जो थे एक दूसरे के आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। अक्रॉस दोज 2 रीजन एंड ऑल द वे टू पंजाब। अब इनके साथ ही 2 रीजन ऐसे थे पंजाब तक। दे रूल्ड अ पावरफुल डायनेस्टी, जिन्होंने जो है एक पावरफुल डायनेस्टी को क्या किया, रूल किया था, नोन एज हिंदू शाहीज, जिन्हें क्या बोला जाता है, हिंदू शाहीज। विद द हेल्प ऑफ सेवरल अदर इंडियन रूलर, दूसरे कुछ रूलर के साथ मिलकर। दे रेजिस्टेंट सेवरल अटेम्प्ट इन्वेजन, उन्होंने जो है बहुत सारे कुछ अटेम्प्ट हुए थे जो बाहर से आक्रमण हुए, उनको उन्होंने रोक दिया था। दिस रेजिस्टेंस मेड अ डिफरेंस, अब इसकी वजह से डिफरेंस भी बना था। सिंस दे कंट्रोल द खाइबर पास, अब उन्होंने क्या किया, खाइबर पास को जो है कंट्रोल में रखा। वन ऑफ द मेन माउंटेन पासिस थ्रू द हिंदू कुश रेंज, जो कि हिंदू कुश रेंज का एक जो है मेन पास है कि वहाँ से वो पास करके वहाँ से निकल के आ सकते इसमें। तो उन्होंने उस जगह पर क्या किया, अपना कंट्रोल बना लिया। इन द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अब इंडिया की हिस्ट्री में हम देखेंगे मैनी इन्वेडर्स यूज दिस पास, जो आक्रमण करता आते थे, जो बाहर से आक्रमण करने, युद्ध करने आते थे, वो इसी जगह का, इसी दर्रे का यूज़ करते थे टू एंटर द सब कंटिनेंट, यहाँ इंडिया में आने के लिए, फॉर एटलीस्ट 2500 ईयर्स, इतने सालों तक। इट वॉज ऑल्सो अ मेजर ट्रेड, और ये एक बहुत ही मेजर ट्रेड रूट भी था जिससे जो है सब कंटिनेंट को, सेंट्रल एशिया और उसके आगे जोड़ा जाता था। एंड द रूट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स एंड मोंक ट्रेवल्ड, और इसी रास्ते से जो बुद्धिस्ट स्कॉलर और मोंक होते थे वो भी ट्रैवल करते थे। अब यहाँ पर वो रास्ता दिखाया गया है, ये देखो, तो यही वो रास्ता था जहाँ से मोस्टली जो आक्रमणकर्ता वगैरह थे वो भी आते थे। नाउ ऑब्जर्व द स्केच ऑफ खाइबर पास, जो हमने अभी देखा, वन काइंड ऑफ टेरेन डज इट डिपाइस्ड। सो द स्केच ऑफ खाइबर पास डिपाइस्ड अ रग्ड माउंटेन टेरेन कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टिप स्लोप है, डीप राइवंस है एंड नैरो वैलीज है, एंड इज वन ऑफ द मेन माउंटेन पास है हिंदू कुश रेंज से। दिस चैलेंजिंग एनवायरमेंट मेंट दैट passes was limited to specific confined routes है। The pass's strategic significance lies preciously in the fact that it provided a crucial though difficult gateway between Central Asia and the Indian subcontinent. What advantages would it offer to an army trying to reach the
इंडस प्लेन। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लेकिन साथ में डेंजर भी। सो फॉर एन आर्मी अटेम्प्टिंग टू रीच द इंडस प्लेन, द खाइबर पास ऑफर द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट रूट मिल रहा है इसमें सब कॉन्टिनेंट के लिए। हाउएवर द सेम एनवायरमेंट ऑल्सो पोज्ड सीरियस रिस्क। बीइंग अ नैरो चोक पॉइंट है, मूवमेंट वुड बी स्लो एंड कन्फाइंड, मेकिंग द आर्मी हाईली वेनरेबल टू अटैक। This danger was proven by Hindu Shahis, who successfully resist several attempt invasion, largely because they controlled the pass. तो बहुत सारे attempt उन्होंने की invasion को रोका भी, क्योंकि वो जो है उस पास को कंट्रोल करते थे। The rugged terrain thus gave defending force a significant edge for ambushes and strong resistance. Thinking of caravans of traders that passed through the Khyber Pass for many centuries, let us ask some question about the advantage as well as the disadvantage. So for caravans of traders passing through the Khyber Pass over many centuries, the key advantage was its function as a major trade route. For at least 2500 years, it serves as a vital link connecting the subcontinent to Central Asia and beyond, facilitating immense commerce and the exchange of culture and scholars. Conversely, the danger for traders were primarily the natural obstacle of mountain terrain itself, which made travel slow and arduous. Furthermore, due to the immense wealth being transported along such a vital route, caravans would have faced the constant danger. तो constant danger उन्हें feel होता रहता था, being plundered or raided, especially in the time of political instability or during numerous military campaign powered by the Ghaznavi. अल्टीमेटली हावेवर अ तुर्की पावर, तो एक तुर्की पावर थे गजनवी, आफ्टर डिफीटेड अ राइवल मुस्लिम किंगडम, एक मुस्लिम किंगडम को हराने के बाद में ओवर रन द साहिज, वो शाही को भी उन्होंने हरा दिया। रूल्ड एट द टाइम बाय जायपला, तो जायपला पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रूल किया। एज देयर नेम इंडिकेट, अब जैसे उनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, द गजनवी, कैपिटल वोज गजना, अब इनकी कैपिटल क्या थी, गजना। टुडेज गजनी, टुडे का क्या है, आज के टाइम का गजनी, इन अफगानिस्तान। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इनका क्या हुआ था, देयर रूलर, इनका जो रूलर था महमूद, ओफन रेफर्ड एज महमूद ऑफ गजनी, जिसे महमूद ऑफ गजनी भी बोला जाता है, अकम्प्लिश्ड हिज फाइनल कन्क्वेस्ट, उनकी जो फाइनल कन्क्वेस्ट थी, जीत थी, वो उन्होंने ले ली थी। पहले उन्होंने किया फर्स्ट डिफीटिंग जयपाला, जयपाला को उन्होंने क्या किया, जयपाल को हरा दिया इन 1008, ओवरकमिंग जयपाल सन्स आनंद पाल, उसके बाद में उनके जो है बेटे थे जो आनंद पाल थे, उनको भी उन्होंने हरा दिया आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, बहुत लंबी बैटल के बाद। डिस्पाइट द सपोर्ट आनंद पाल रिसीव्ड फ्रॉम सेवरल रूलर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, अब आनंद पाल अकेले नहीं थे, उन्होंने आसपास के लोगों से भी उन्हें क्या मिला था, सपोर्ट मिला था, लेकिन फिर भी जो है गजनी ने इन्हें हरा दिया था, जो महमूद ऑफ गजनी है। द आउटकम ऑफ दैट बैटल, अब इस बैटल का आउटकम क्या था, वेजेड इन नॉर्थन पंजाब मीन दैट महमूद नाउ हैज़ ईजी एक्सेस टू द इंडस प्लेन एंड बियॉन्ड, तो अब इसकी वजह से क्या हो गया था, पंजाब और सिंध में जो है उसे क्या मिल गया था, मतलब पंजाब और आसपास के एरिया में इंडस प्लेन और बियॉन्ड है, वो उसका एक तरह से कंट्रोल हो गया था, वो ईजिली वहाँ से जा सकता था, आ जा सकता था। वी विल मेट लेटर इन दिस चैप्टर द पर्शियन स्कॉलर, अब इसमें जो है हम आगे किससे मिलेंगे, अल बरूनी से मिलेंगे, जो पर्शियन स्कॉलर थे, हु कंप्लेंट महमूद इन सम ऑफ हिज कैंपेन्स, जिन्होंने जो है उनका साथ दिया उस टाइम पे, उनके साथ ही थे। ही रोट इन हिज मेमोरीज ऑन इंडिया, तो उन्होंने जो है जब वो इंडिया में आए उसके बारे में क्या क्या देखा वो बताया है। द हिंदू शाहीज डायनेस्टी इज नाउ एक्सटिंक्ट, यानी कि ख़त्म हो गई है, एंड ऑफ द होल हाउस देयर इज़ नो लॉन्गर द स्लाइटेस्ट रेमेंट इन एग्जिस्टेंस, और कोई घर भी जो है अब एग्जिस्टेंस में वहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। वी मस्ट से डैट इन ऑल देयर गार्डनर दे नेवर स्लैकेंड इन द एदनर डिज़ायर ऑफ डूइंग डैट विच इज़ गुड एंड राइट, तो उन्होंने एक तरह से यहाँ पर यही बोला कि इस टाइम तक क्या हो गया था, उन्होंने हरा दिया था उनको, उनके पास कुछ नहीं बना था, बचा था, उनके घर वगैरह सब तबाह कर दिए थे, पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया था, उनकी जो डिज़ायर थी जीने की वो भी सही थी, जो अच्छी थी या सही थी उसको भी उन्होंने बिल्कुल ही तोड़ दिया था। डैट दे वर मैन ऑफ नोबल सेंटिमेंट्स एंड नोबल बियरिंग। वट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ अबाउट दिस रिमार्क बाय समवन इन महमूद एंड एंट्रोस, तो इससे क्या जो है समझ आता है, जो कोई जो महमूद के उसमें ही रह रहा है, मतलब एक छतर छाया में बोल सकते और उसके बाद भी। नाउ महमूद अज्यूम्ड, अब उन्होंने अज्यूम किया द टाइटल ऑफ सुल्तान, सुल्तान का टाइटल एक वर्ड है अरेबिक ओरिजिन विच मीन्स अथॉरिटी और पावर इन द मुस्लिम वर्ल्ड
इट केम्स टू रेफर टू अ सोवेनियर रूलर और किंग, तो एक मतलब बहुत बड़ा रूलर या किंग की तरह उससे सुल्तान को बोला जाता है। ग्रेड 8 वी विल कम अक्रॉस सुल्तान हु एस्टेब्लिश देयर किंगडम और सल्तनत इन इंडिया। तो ग्रेड 8 में हम देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान ने अपने राज्य या किंगडम या सल्तनत बनाई। द डोमिनेंट वन बीइंग द दिल्ली सल्तनत, और जो डोमिनेंट होते थे, जिनके पास ज़्यादा पावर थी, वो क्या हो गए, दिल्ली सल्तनत के हेड बने थे। ठीक है, उसके बाद इन ऑल महमूद कंडक्टेड 17 कैंपेन्स इन इंडिया, तो 17 टाइम्स उन्होंने ये किया था। आफ्टर ईच वन ही वुड रिटर्न टू गजनी, वो गजनी जाते थे विद हीज अमाउंट ऑफ बूटी, यानी कि बहुत सारे पैसे वगैरह धन लेकर। ऑल दो ही मेट विद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अब उन्हें जो है हर जगह जब भी वो जाते थे तो उनका विरोध होता था, उन्हें फेस करना पड़ता था, फ्रॉम द चंदेल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया अमंग अदर्स, सबके सामने। एंड वॉज क्लोज टू डिफीट ऑन अ फ्यू ओकेजन्स, और कई बार तो बिल्कुल ये था कि वो हारने ही वाले हैं। इज लार्ज आर्मीज, रैपिड मार्चेज एंड डेयरिंग कैवलरीज अटैक विद आर्चर्स ऑन हॉर्स बैक वर अल्टीमेटली डिसीव, लेकिन उनकी जो है आर्मी जो थी बहुत बड़ी थी और वो रेगुलरली चलती रहती थी, और उनके जो अटैक होते थे बहुत ही अच्छे थे, और जो हॉर्स पे बैठे होते थे आर्चर्स होते थे वो भी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से वो मोस्टली जीत जाते थे, जिनको हराना बहुत मुश्किल था। तो ये हिंदू शाहीज हो गई, ये खाइबर पास हो गया, तो यहाँ से ये हमेशा आते थे और वो पूरी जगह को ले लेते थे। यहाँ से ये जो गजनवी आया था वो वाला रास्ता। नाउ व्हेन महमूद रीच्ड मथुरा, जब वो मथुरा में पहुंचे इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश इन 1018, ही फाउंड इट टू बी अ सिटी ऑफ एनरमस वेल्थ, उन्हें लगा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थ है। विद अ मैग्निफिसेंट टेम्पल ओवरलुकिंग द सिटी, और एक बहुत बड़ा टेम्पल है जो सिटी से मतलब बहुत ऊंचा आप लगा सकते हैं। महमूद कोर्ट हिस्टीरियन अल उत्तबी हु क्रोनोलाइज्ड हिज कैंपेन्स, जो उनकी कैंपेन वगैरह को बताता रहता था, रोड डेट, उसने लिखा है डेट इवन द पेन ऑफ ऑल राइटर्स एंड द पेंसिल ऑफ ऑल पेंटर्स वुड बी अनेबल टू डिस्क्राइब द टेम्पल्स ब्यूटी एंड डेकोरेशन। उन्होंने क्या लिखा है कि जितने भी पेन है, जितने भी राइटर्स, उनके सारे पेन खत्म हो जाएंगे, जितने पेंटर्स उनकी सारी पेंसिल खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो टेम्पल की ब्यूटी और जो डेकोरेशन उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। महमूद ने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और प्लंडर ट्रेजर, जितनी भी इसकी चीज़ें थी वो सब लूट ली। देन प्रोसीड टू कन्नौज, और कन्नौज की तरफ गया, वेयर ही टुक वन ऑफ द लास्ट प्रतिहारा रूलर बाय सरप्राइज, जहाँ पे उसे जो है लास्ट प्रतिहार जो थे वो उन्हें मिले, एंड लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड मैनी टेम्पल, उन्हें भी उन्होंने मार दिया और सारे जो टेम्पल्स थे उनको लूट लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, अब फिर से वो आएंगे, अनदर कैंपेन टुक हिम टू गुजरात, क्योंकि उसे क्या था, पैसे लेने वापस जाने, तो जितना मिलता था वो लूटता था और वापस चला जाता था। दूसरा कैंपेन हुआ गुजरात में, एंड टू सोमनाथ इन प्रेजेंट डे सोहस्त्रा, विच वॉज देन अ बस्टलिंग सी पोर्ट, जो कि मतलब बहुत फैलता फूलता सी पोर्ट था। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल्स एंड सेवरल लॉसेज टू हिज आर्मी, अब जो लोकल थे वो बहुत इसका विरोध कर रहे थे और बहुत बार वो हार भी गया था उसकी आर्मी के बाद। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग महमूद गेंड द अपर हैंड, लेकिन कुछ दिन लड़ने के बाद अपर हैंड मिल गया, यानी कि वो एक तरह से जीत गया। उसने क्या किया, सोमनाथ जो शिवा टेम्पल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको लूट लिया, इसकी जितने भी एनर्मस ट्रेजर थे सारी चीज़ें उन्होंने लूटी यहाँ से। रुइंस ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन टूडेज आम शरीफ नॉर्दर्न पाकिस्तान में जो है, बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिंदू शाहीज के टाइम पे जो टेम्पल बना था। Now, in the later centuries, the Somnath temple was rebuilt and destroyed again several times. The existing temple was built in 1950 and inaugurated the next year by the then President of India, Rajendra Prasad. Why do you think it was decided to fund the construction entirely from public donation? So, the decision to fund the construction of Somnath temple entirely from public donation was a deliberate and strategic choice that transformed the rebuilding effort into a national people-led initiative. Because the temple has been rapidly destroyed and plundered by foreign invaders, आते रहते थे हमेशा उसको लूट कर और तबाह करके चले जाते थे। Most famously by Muhammad of Ghazni in 1026 CE, relying on the public contribution, emphasized that the site's significance transcended political or state funding and affirmed its enduring importance as a symbol of cultural स्पिरिचुअल रिलायंस फॉर द इंडियन पॉपुलेंस। तो ये एक तरह से उनका कल्चर और स्पिरिचुअल रिलायंस भी यहाँ पे शो कर रहा था। दिस अप्रोच अलाउड एवरी सिटीजन, अब ये अप्रोच जो है अलाउ कर रही थी हर एक सिटीजन को, डिवोटी को,
ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ रिस्टोरेशन में, फोस्टरिंग अ डीप सेंस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप एंड वैलिडेटिंग द बिलीफ दैट इंडियन कल्चर स्टैंड फर्म, कि इंडियन कल्चर हमेशा एक साथ खड़ा रहता है देन एनी रोग इन द वर्ल्ड विद इट्स अनडाइंग वीगर इंडिस्ट्रक्टिबल लाइफ, कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो लेकिन इंडियन हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे. नाउ महमूद डाइड इन 130 इन गजनी में ही वो मर गया एट द एज ऑफ 58. अबाउट दिस टाइम, इस टाइम तक उनके जो नेफ्यू थे सालर मसूद लॉन्च्ड एन अटैक, उन्होंने एक अटैक जो है लॉन्च किया ऑन द गंगेटिक रीजन. अकॉर्डिंग टू ओरल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एंड टू द 17th century मुस्लिम क्रॉनिकल, व्हेन ही रीच्ड बहारीच, जब इन मॉडर्न डे जो है अब उसमें है उत्तर प्रदेश बारूच में जब वो पहुँचे, द लोकल रूलर सुलहदेव और सुलहदेव सक्सेसफुली रजिस्ट द अटैक, उन्होंने उसके अटैक को उनको अटैक किया, उनको रोका और वो सक्सेसफुल थे. एंड सैलर मसूद क्या हो गए, वो बैटल में गिर गए या हार गए. महमूद कैंपेन इन्वॉल्व नॉट ओनली डिस्ट्रक्शन एंड प्लंडर. अब महमूद की जो कैंपेन होती, जो लड़ाइयाँ होती थी, उसमें ये नहीं था कि वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं और सिर्फ लूट रहे हैं, बट ऑल्सो द स्लॉटर ऑफ 10,000 ऑफ इंडियन सिविलियंस एंड द कैप्चर ऑफ न्यूमरस प्रिजनर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन who were taken to be sold on slave market of Central Asia. बल्कि वो बहुत सारे लोगों को जो इंडियन सिविलियंस होते थे उनको मार देते थे, थाउजेंड्स को, 10,000, और प्रिजनर यहाँ तक कि अगर बच्चे वगैरह हैं उनको भी ले जाते थे और स्लेव मार्केट में जाकर सेंट्रल एशिया में बेच देते थे. हिज बायोग्राफर, उनके जो बायोग्राफर हैं, डिपाइस्ड हिम एज अ पावरफुल बट क्रूअल एंड रूथलेस जर्नल. उन्होंने उन्हें पावरफुल बताया लेकिन क्रूअल भी बताया, रूथलेस भी. कीन नॉट ओनली टू स्लोटर और इनस्लेव इनफाइल्स. अब ये नहीं कि सिर्फ वो स्लोटर करता था, मार देता था, इनस्लेव कर देता इनफिडल्स को. इनफिडल्स हमने पहले भी देखा कि जो मुस्लिम या इस्लाम को नहीं मानता है वो, डैट इज़ हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन. बट ऑल्सो टू किल बिलीवर फ्रॉम राइवल सेक्ट ऑफ इस्लाम. ये बल्कि वो क्या करता था, जो दूसरे इस्लाम को छोड़कर दूसरी जगह पर यकीन करते थे या दूसरे भगवान को मानते थे, उनको भी वो क्या कर देता था, मार देता था. अब आता है अल-बुरूनी. अबू रयान अल-बुरूनी, अ पर्शियन स्कॉलर फ्रॉम खावारिज्म, जो कि आज के टाइम का उज्बेकिस्तान है, उस टाइम के थे. वो ट्रैवलर थे, वॉज अ मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर, हिस्टोरियन एंड लिंग्विस्टिक, ऑल रोल्ड इनटू वन. तो ये सब काम वो करते थे. ही ट्रैवल्ड वाइडली, उन्होंने बहुत टाइम तक जो है ट्रैवल किया. एंड रोट प्रोलिफेशली बोथ इन अरबिक एंड पर्शियन, दोनों में काम किया. और नियरली एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज नोन इन दिस टाइम, इस उनके टाइम में जितनी भी नॉलेज थी या जितनी चीज़ों के बारे में उन्होंने पता था, वो सब चीज़ें उन्होंने देखी या उनके बारे में, मतलब जितनी नॉलेज थी हर एक ब्रांच में उन्होंने काम किया था. अराउंड 1017 अल-बुरूनी कंप्लेंट महमूद ऑफ गजनी ऑन हिज कैंपेन इनटू इंडिया, तो वो उसके साथ में आए. ही लर्न संस्कृत, यहाँ पर आकर उन्होंने संस्कृत सीखी, इंडियन टेक्स्ट पढ़े और कन्वर्स्ड विद इंडियन स्कॉलर्स, उनके साथ बातें करी. द रिजल्ट वॉज एन एनसाइक्लोपीडियक सर्वे ऑफ इंडियन रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेचर, ज्योग्राफी एंड साइंस, इन विच ही डिस्कस्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट एज बेस्ट ही कुड, often comparing them with those of Greek and Islamic traditions. So इस तरह से क्या हो गया, एक रिजल्ट हो गया, एनसाइक्लोपीडियक जो है सर्वे हो गया कि इंडिया का रिलीजन क्या है, फिलोसफी कैसी है, लिटरेचर, ज्योग्राफी, साइंस, सब चीज़ों पे उन्होंने डिस्कस किया. तो एक सर्वे हो गया कि, और साथ में वो क्या कंपेयर भी करते थे कि ग्रीक में ये चीज़ें होती है और इस्लामिक ट्रेडिशन में इस तरह से होता है और यहाँ पर इतना है. और उन्होंने इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट को जितना हो सकता उतना बेस्ट समझा. In mathematics and astronomy, Al-Biruni compiled what he would gather from the works of Aryabhatta, Varahamihira and Brahmagupta, among others. और मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में तो उन्होंने क्या किया, आर्यभट्टा, वराहमिहिरा और ब्रह्मगुप्त की जितनी भी बुक्स या चीज़ें थी, उनसे उन्हें जितनी चीज़ें मिली उन सबको कंपाइल करके एक बना दिया. इन अनदर वर्क, दूसरा वर्क, ही ट्रांसलेटेड इट इनटू अरबिक पतंजलि योग सूत्र. अब जो पतंजलि के योग सूत्र थे उन्होंने उनको अरेबिक में ट्रांसलेट किया. अ क्लासिकल टेक्स्ट ऑन एडवांस कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ योगा. तो ये क्या था, एक क्लासिकल टेक्स्ट था बहुत पुराना जिसमें योगा के कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स बताई गई थी. एट द सेम टाइम अल-बुरूनी नोटेड द इम्पैक्ट ऑफ महमूद मिलिट्री कैंपेन ऑन इंडिया साइंटिफिक ट्रेडिशन. तो उन्होंने देखा कि महमूद के जो मिलिट्री कैंपेन की वजह से इंडिया के साइंटिफिक ट्रेडिशन पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए वो भी उन्होंने लिखा. महमूद अल्टरली रूइंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. उन्होंने लिखा कि महमूद ने क्या किया है, प्रोस्पेरिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया. एंड परफॉर्म्ड देयर
वंडरफुल फीट्स बाय विच द हिंदू बिकेम लाइक एटम ऑफ डस्ट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो एक तरह से मतलब एक बोम की तरह काम किया जिसमें सारे हिंदू इधर उधर फैल गए हैं सारी डायरेक्शन में। दिस इज द रीजन टू वाई इंडियन साइंस हैव रिटायर्ड फार अवे फ्रॉम दोज पार्ट ऑफ द कंट्री कॉन्क्यूर्ड बाय अस। तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जिस जिस पार्ट पे हमने जीती थी वहाँ पर साइंस जो है, इंडियन साइंस जो है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, यानी कि ख़त्म हो गई थी। एंड हैव फ्लेड टू प्लेसेस विद अवर हैंड कैन नॉट येट रीच। और ऐसी जगह पर मतलब वो लोग वहाँ से चले गए तो साइंस तो उन्हीं के साथ है, उन्हें ही पता थी। तो जैसे ही वो लोग गए तो उनकी रीच से भी वो चीज़ चली गई टू कश्मीर, वाराणसी और बाकी प्लेसेस में। फिर आते हैं भास्कराचार्य। वाइल द प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज डिड डिक्लाइन इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में डिक्लाइन हो गया था अ लिटल लेटर, दे कंटिन्यू टू फ्लरिश इन अदर रीजन, लेकिन बाकी रीजन में ये चीज़ चलती रही थी। बोर्न इन 1114 प्रोबेबली इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, भास्करा टू better known as Bhaskaracharya was one of India's greatest mathematician and astronomer. His family counted several scholars and astronomers. His most famous work, all in Sanskrit, are Leelavati, which uses lively riddles and problem to teach basic mathematics. So मतलब ये बहुत ही अच्छी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनोमर बोले जाते हैं। इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा स्कॉलर एस्ट्रोनोमर रहे हैं। इनका जो फेमस काम है वो कौन सा है, लीलावती, जो संस्कृत में ही है। और ये जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे मैथ के वो रिडल और प्रॉब्लम से सिखाते थे। बीज गणिता ऑन मोर एडवांस्ड अलजेब्रा एंड, तो ये क्या था, एडवांस अलजेब्रा था। और सिद्धांत शिरोमणि क्राउन ऑफ टेरिटरीज ऑन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी विच डील विद एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, जिससे जो है ईजिली जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है एडवांस वो कर सकती हैं। मैनी लेटर स्कॉलर रोट commentaries on those work and several of them were translated into Persian during the Mughal period. So बहुत सारे बाकी के स्कॉलर्स ने इन पे अपने अपने कमेंट्री लिखी, अपनी अपनी चीज़ें लिखी, अपने अकॉर्डिंग उन्हें समझाया। और बहुत जो मुग़ल के टाइम पे इन सारे ज़्यादातर कामों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। एज अ रिजल्ट हिज इन्फ्लुएंस इन इंडिया एंड बियॉन्ड वॉज लॉन्ग लास्टिंग। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है इंडिया में और आसपास वो बहुत ज़्यादा था, ये लंबे टाइम तक रहा। इट वुड टेक यूरोप अ फ्यू सेंचुरी टू रीडिस्कवर सम ऑफ भास्कराचार्यस पायनियरिंग टेक्निक्स। और यूरोप को उसके बाद भी कुछ सेंचुरी लगी, जो भास्कराचार्य ने ऑलरेडी टेक्निक्स सोल्व कर ली थी या देख ली थी, उनको रीडिस्कवर करने में यूरोप को अभी बहुत टाइम लगा था। In addition to his scientific knowledge, Bhaskaracharya has a gift for poetry and used his talent to make his writing enjoyable to scholars and student alike. अब वो साइंटिफिक नॉलेज तो उससे थी ही, साथ में भास्कराचार्य का एक गिफ्ट था पोइट्री का भी, यानी कि पोइट्री बहुत अच्छी करते थे। सो इसी टैलेंट का वो यूज़ करते थे अपने मैथ्स की चीज़ें या साइंस की चीज़ें बताने के लिए, ताकि स्कॉलर्स और स्टूडेंट बहुत ईजिली और एन्जॉयबली उसको पढ़ सकें। हिज वर्क वर फुल ऑफ एग्जाम्पल, अब उनके जो काम थे एग्जाम्पल से वो बताते थे, विद क्लियर एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रूफ, मेकिंग दैम फेवरेट टेक्स्ट विद स्टूडेंट फॉर सेंचुरीज। तो इस वजह से जो है उनकी बुक जो है बहुत फेवरेट थी हर एक बच्चे के लिए। Remember that you saw such examples in your mathematics book of grade 7. Here is an example from Leelavati. अब ये example है, see if you can find the solution. Of a herd of elephant, half and 1/3 of the half went into a cave. इधर इतने जो है cave में चले गए। 1/6 and 1/7 of 1/6 were drinking water from the river. 1/8 and 1/9 of 1/9 was sprouting in pond full of lotus. And the king of the elephant was leading 3 female elephant. So tell me how many elephant were there in the herd. तो उस झुंड में जो है टोटल कितने एलिफेंट्स हैं। सो 7th सेंचुरी में जो मैन्यूस्क्रिप्ट, 17th सेंचुरी में जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती विद अ पिकॉक पर्च ऑन टॉप ऑफ अ पिलर एंड अ स्नेक बिलो, नीचे क्या एक स्नेक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस उनके मिलते थे हमेशा। अब ये पेंटिंग है डिपाइस्टिंग एन इंडियन रूलर ब्रोड टू महमूद, उनको जो है पकड़ के इंडियन रूलर को महमूद के पास लेकर आए हैं एज अ प्रिजनर, एक प्रिजनर की तरह। मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ अ 15th सेंचुरी हिस्टोरिकल वर्क इन पर्शियन। नाउ एज महमूद डिड नॉट अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट बेस इन इंडिया, तो वो जो है परमानेंट बेस नहीं बनाना चाहते थे इंडिया में बियॉन्ड पंजाब। हिस्टोरियन हैव डिबेटेड हिज मोटिव फॉर कंडक्टिंग सच डिस्ट्रक्टिव कैंपेन्स। सो जो हिस्टोरियंस वो सोचते रहते तो फिर इतना डिस्ट्रैक्शन करने की क्या जरूरत थी। They have open suggest that plunder was the chief reason for his destruction of temple in India. तो मेन जो बताते हैं कि उसे लूट करनी थी, सारी चीज़ें लेकर जानी थी, और यही उनका मेन रीज़न था टेम्पल को डिस्ट्रक्ट करने का।
इट इज़ ट्रू दैट द लार्ज टेम्पल ऑफन हेल्ड इमेंस वेल्थ। ये ट्रू है कि जो बड़े बड़े टेम्पल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, वेल्थ होते हैं। अकोमुलेट फ्रॉम द डिवोटीज ऑफरिंग ओवर सेंचुरीज, क्योंकि बहुत डिवोटीज होते हैं जो बहुत सेंचुरीज तक वहाँ पर पैसे देते रहते, ऑफर करते रहते हैं। एंड वुड देयर फोर बी प्राइम टारगेट फॉर प्लंडर, और वो ही उनका हमेशा प्राइम टारगेट होता था। बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट महमूद वॉज कीन टू स्प्रेड हिज वर्जन ऑफ इस्लाम टू नॉन मुस्लिम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये भी है कि महमूद जो है अपना वर्जन बताना चाहता था कि इस्लाम इम्पोर्टेंट है, और बाकी की जो पूरी दुनिया में जो भी नॉन मुस्लिम पार्ट था उन सब जगह पर। एज वी फाइंड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी एविडेंस, अलुताबी फॉर इंस्टेंस नोटेड, उन्होंने नोट किया, वेन एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाते थे, महमूद प्लंडर्ड एंड सेक्ट द कंट्री अंटिल इट वॉज जस्ट अ मिनट अंटिल इट वॉज एनी हिलबेटेड। तो जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए तब तक वहाँ पर वो बार बार जाते रहते, उसको लूटते रहते, चीज़ें लेके आते। ही डग अप एंड बर्न डाउन ऑल हिज इट्स बिल्डिंग, उनकी सारी जितना उसकी उनकी बिल्डिंग्स को जला देते थे। किल्ड्स दोज इनफाइडल्स, जो इनफाइडल्स हैं इनके मुस्लिम नहीं, उन्हें मार देते थे। एंड कैरिड अवे देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को ले जाते थे, कैटल्स को ले जाते थे एज बूटी, एज मतलब पैसे की तरह, उस तरह से, क्योंकि बेचना है उन्हें। तो ही मास्टर सेवरल अदर टेरिटरीज, उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज में जो है अपना पावरफुल या अपनी डोमिनेंस दिखा दी थी। एंड डिस्ट्रॉइंग देयर टेम्पल्स, उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना, उनकी जो सेक्रेड प्लेसेस थी, बिल्डिंग्स थी, उनको डिस्ट्रॉय करना। बिल्ड मस्क्यूज इंस्टेड, और उसके मस्जिद वगैरह बनाना। मेकिंग द लाइट ऑफ इस्लाम विजिबल, ताकि सिर्फ वो ही दिखाई दे, मतलब मंदिर सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी और सिर्फ उनकी मस्जिद दिखाई दे। लेट अस ऑल्सो रेफर अगेन टू अल-बरूनी, अब अल-बरूनी का भी फिर से देख लेते हैं। हु आफ्टर एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ शिवलिंगा, जिन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो शिवलिंगा है उसकी वर्शिप पूजा क्यों की जाती है एट द सोमनाथ टेम्पल, रिकॉर्डेड, उन्होंने रिकॉर्ड किया, द इमेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द प्रिंस महमूद, प्रिंस महमूद ने उनकी जो इमेज थी जिसकी पूजा होती थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ही ऑर्डर द अपर पार्ट टू बी ब्रोकन, उन्होंने बोला कि अपर पार्ट टूट जाना चाहिए। एंड द रिमाइंडर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू हिज रेजिस्टेंस गजनी, और जो बाकी का पार्ट है वो गजनी में उनके घर पे पहुंचना चाहिए। अ पार्ट ऑफ द इमेज लाइज बिफोर द डोर ऑफ द मोस्यूक ऑफ गजनी, और कहाँ है, जो मस्जिद है उनके घर के बाहर या गजनी में, वहाँ पर वो रहेगा। ऑन विच पीपल रब देयर फीट, जहाँ पर जाकर वहाँ पर लोग क्या करेंगे, अपने पाँव रगड़ेंगे। टू क्लीन देम फ्रॉम डर्ट एंड वेट, यानी कि मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद के बाहर उन्होंने उसकी जो सोमनाथ टेम्पल से लेके आए वो है, और वहाँ पर जाकर उसको उसके सामने रखना है, ताकि लोग जब अंदर आएंगे तो इससे अपने पाँव पोंछेंगे और फिर अंदर आएंगे। A coin issued from Lahore by Mahmud, which one side is Arabic, एक side Arabic है, and the other is in Sanskrit, praising Islam and Mahmud as निरपाती और किंग, जिसमें महमूद की राजा बोला गया और उनकी प्रेज की गई है। सो आज हम करेंगे इतना ही, उसके बाद आता है ईस्टर्न इंडिया जो हम करेंगे कल। अगर अभी तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।